This is sample paper, question paper issued by CBSE for class 10, that is for 2024-25, means coming exam. That is mathematics basic, code number 241. Time is 3 hours and maximum marks 80. Some instructions are given. These are: the question paper contains 38 questions. There are 5 sections, A, B, C, D, E. In section A, total 20 questions. Out of 20, 18 are multiple choice questions and two of assertion reason questions. 5 questions of 2 marks, 6 questions of 3 mark, 4 questions of 5 mark, means long answer question. 3 questions of each 4 marks of case study based questions, and there are some internal choice. Draw neat and clean figure wherever required. Take pi 22/7 if other value is not given. And use of calculators is not allowed. And we will be discussing here. I will be discussing section A. Section A, the first question is SCF of this number and this number is, देखिए क्या करते हैं हम इनमें, हम इनको वापस लिखते हैं। इन्हें ये प्राइम फैक्टर्स हैं। 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 इंटू 2 पावर 1। सेकंड के लिए 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 3 इंटू 2 पावर 2। थर्ड के लिए 3 पावर 4 इंटू 5 इंटू 5 पावर 1 इंटू 2 पावर 3। हर एक में 2, 3 और 4 में सबसे लोवेस्ट पावर देखते हैं एचसीएफ के लिए, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो देखिए 3 का लोवेस्ट पावर है 3 पावर 2, 5 का है, तीनों में चेक करिए 5 पावर 1, और 2 में है 2 पावर 1। एचसीएफ के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 पावर 2 इंटू 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। 3 power 2 means 3 square is 9 and 2 5 are 10. 10 9 are 90. So SCF is 90. B is the correct option. The system of linear equations means pair of linear equation represented by the lines L and M is. देखिए ये दो लाइन यहाँ पे हैं, ये लाइन L और ये लाइन L। ये दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट पे। जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। Number 2, consistent means having solution either unique solution or infinitely many solution. Consistent उसको कहते हैं कि linear equations अगर कोई भी उनका solution है, चाहे unique solution हो या more than one solution हो या infinitely many solution हो, the system of equations said to be consistent. So A is the correct option. Consistent तो है ही है, unique भी है। What is the value of k for which the quadratic equation kx square minus 5x plus 1 is equal to 0 does not have a real solution? इसके रियल सॉल्यूशन नहीं है, रियल रूट नहीं है। क्या कंडीशन होती है? कंडीशन फॉर नॉन रियल रूट्स
that is discriminant should be negative. Discriminant means b square minus 4ac should be negative, means less than 0. In place of b, put minus 5 whole square minus 4 as it is. In place of a, put k. In place of c, put 1. That should be less than 0. Minus 5 whole square, that is 25, minus 4k should be less than 0. We can say that 25 should be less than 4k. k का वैल्यू क्या होगा? 25 अपॉन 4 शुड बी लेस देन k. k का वैल्यू 25 4 से ज्यादा होना चाहिए. ये ग्रेटर का साइन है. 6.25 से k का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए. देखिए, अब यहां पे हम सारे नंबर्स को देखेंगे. ये नहीं है क्योंकि ये तो जीरो ही वैल्यू है. 6.25 से छोटा है. इट इज लेस देन 6.25, सो इट इज रिजेक्टेड. ये 6.25 ही है, ग्रेटर नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड. दिस इज लेस देन 1, तो ये तो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा. लेकिन ये जो नंबर है 7, वो 6.25 से ग्रेटर है, उससे ज्यादा है. दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. The distance between the points A, B and minus A, minus B is, पहले हम distance formula लिखेंगे. That is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 minus A है, minus a whole square plus minus b whole square. देखिए, माइनस ए माइनस 2a हो गया, माइनस 2a होल स्क्वायर. माइनस बी माइनस 2b हो गया, माइनस 2b होल स्क्वायर. माइनस 2a होल स्क्वायर, 2 का होल माइनस 2 होल स्क्वायर 4 होता है, तो 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर मीन्स 4b स्क्वायर. यहाँ पे आपको 4 कॉमन लेना चाहिए और यू कैन राइट 2 इंटू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. आपको 2 इंटू 2 लेना पड़ेगा और इस 2 इंटू 2 में से एक 2 बाहर ले लेंगे. तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही इसका आंसर हुआ. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Here this angle QPR is given 35 डिग्री. हमें पता है कि देखिए, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट इज 90 डिग्री. This angle is also 90 degree. So angle, the sum of all four angles means this plus Q plus O plus R, that will be 360. 360 means because it is a quadrilateral. So 90 plus 90 ये हो गया, तो this plus this should be 180. So it will be 145 degree. That is 145 degree. So D is the correct option. Triangle ABC and triangle PQ are two similar triangles, and 3AB is equal to twice of PQ. BC is equal to 10 centimeter. Then we have to determine the length QR. Here are triangle ABC and triangle PQR, and what is given?
दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर, सॉरी पी आर। हमें दे रखा है 3ab इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी क्यू। तो व्हाट इज ए बी अपॉन पी क्यू? Thrice of AB is equal to given 2PQ. So AB upon PQ will be 2 upon 3. इस AB अपॉन PQ की जगह आप 2 अपॉन 3 पुट कर दीजिए। सो 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू BC अपॉन QR। BC की जगह 10 पुट करिए। हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सो QR is equal to 30/2, that is 15. So B is the correct option. Three cot A, that is 4, and the value of A means angle is between 0 and 90 degree. Means in the first quadrant, the sec A is equal to, say, given है 3 cot A is equal to 4. तो cot A हुआ 4 upon 3. tan होता है रेसिप्रोकल ऑफ cot, तो tan होगा tan A will be 3 upon 4. हमें पता है आइडेंटिटी sec स्क्वायर A is equal to 1 plus tan square A. 1 as it is, tan की जगह लिखिए 3/4, देन 3/4 होल स्क्वायर हो गया। 1/1 as it is, 3/4 मीन्स 9/16। सिंप्लीफाई करिए, दैट विल बी एलसीएम 16, तो 25/16। लेकिन ये जो वैल्यू है वो sec स्क्वायर की है। sec a के लिए दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो sec a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/16. So square root of 25 is 5. Square root of 16 is 4. So 5/4. So sec A is 5/4 answer, and A is the correct option. In the given figure, triangle BAC is similar to, इन दोनों में कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है देखिए। इन दो ट्राइंगल में देखिए 90-90 है, और ये जो एंगल E है वो ट्राइंगल इक्वल है। देखिए ये 90, ये 90, ये एंगल ए। तो देखिए ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा? ABAC। बी किसके इक्वल हुआ? देन दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। सो एंगल BAC दैट विल बी इक्वल टू एंगल EAD। देखो थर्ड BAC, B, then A, then C will be equal to angle EAD. So B is the correct option. SCF of the two numbers 420 and 189 is given 21. What is LCM of 420 and 189? There is a formula that LCM of the two numbers A and B, that is equal to A and B divided by SCF of A and B. with दो नंबर का LCM और SCF में ये रिलेशन होता है। यहाँ पे एक ही जगह you put 420, so LCM of 420 and 189
that is equal to 420 into 189 divided by, what is SCF of A and B? SCF of A and B is 21. So divide by 21. Cut kariye. So that is 20 into 189. Multiply kariye. That is 3780. So 3780 will be the LCM of the two numbers. So C is the correct option. फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन एपी इज, देखिए क्या करते हैं, पहले ये फ्रॉम एंड है, मीन्स यहां से स्टार्ट होना चाहिए और इस तरह लेफ्ट में आएगा, तो हम राइट फर्स्ट इन रिवर्सिंग ऑर्डर। 49 लिखा, फिर देखिए देन -2, देन -5, देन -8। अब ये एंड से फर्स्ट टर्म 49 बन चुका है, तो एक ही जगह लीजिए आप 49, डी की जगह लीजिए दिस माइनस दिन मीन्स -8 -5, सो -8 में सब्ट्रैक्ट करिए -5, सिंप्लीफाई करिए -8 माइनस माइनस +5, सो दैट इज -3। जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो -3 है। कौन सा टर्म चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए हमें 4, तो एन की जगह लीजिए 4, सो एन इज इक्वल टू 4। नाउ use nth term from the end will be a4 is equal to a plus 3d. We know nth term is given by a plus n minus 1 into d. A की जगह replace करिए 49, 3 as it is, in place of d you put -3, so 49, 3 3s are -9 here, 49 minus 9, that is 40. So what is the answer? So 40 is the correct answer, means 40 will be the fourth term from the end of the given AP. So B is the correct option. Question number 11. In the figure, triangle OCA is similar to triangle OBD. Then what is the value of angle OAC? Figure हमको next page पे मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल OCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBD और हमें फाइंड आउट करना है एंगल OAC। देखिए कैसे करते हैं, O फर्स्ट, A थर्ड एंड C सेकंड, ऐसे इसमें जाइए, एंगल फर्स्ट थर्ड सेकंड ODB, और एंगल ODB कितना है 58 डिग्री, so that is 58, so we can write it is 58 degree, and this is answer of this question, so A is the correct option. The perimeter of the given triangle is 38 centimeter and the length AP is equal to, देखिए ट्राइंगल है ABC, ये सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को, और हमें पता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल है, हमें AP चाहिए। देखिए RC 8 सेंटीमीटर है, तो ये QC भी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि C से ये एक्सटीरियर पॉइंट है,
सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। इसी तरह से बी आर 6 सेंटीमीटर है तो बीपी भी 6 सेंटीमीटर होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी। ए क्यू को हम एक्स सपोज मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स सेंटीमीटर है तो ए पी भी एक्स होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए टू पी है। इन सबको ऐड करेंगे, दैट गिव्स पेरीमीटर। सो व्हाट इज पेरीमीटर? एक्स प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर, और पेरीमीटर गिवन 38। ऐड करिए, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 6 एंड 6 12, 6 and 6 12 plus 8 20 plus 8 28, that is equal to 38. 2x is equal to 38 minus 28, that is 10. What is x? 10 by 2, that is 5. So this is x, and x is AP, and x is 5. So AP will be equal to 5 centimeter, and B is the correct option. What is the value of 1 minus tan square 30 upon 1 plus tan square 30? ये इनमें से किसके इक्वल है? देखिए, 1 as it is, the value of tan 30 is 1 upon root 3, so 1 upon root 3 whole square, ये न्यूमरेटर हुआ। और डिनोमिनेटर है 1 plus tan square 30, so 1 as it is, divided by tan 30 का वैल्यू पुट करिए 1 upon root 3 whole square। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 as it is, 1 as it is, root 3 whole square is 3, divided by 1 upon 1 as it is, 1 as it is, and root 3 whole square is 3। सिंप्लीफाई करिए, that is 2 upon 3 divided by 4 upon 3, 3 LCM लेके solve करिए। On further simplification, it is 2 upon 3 multiplied by 3 upon 4, 3 and 3 cancel, that is 1 2 upon 4, that is 1 upon 2। इनमें से 1 upon 2 किसका वैल्यू होता है? देखिए, cos 60 का वैल्यू 1 upon 2 होता है, so that is equal to cos 60। So A is the correct option. The total surface area of a solid hemisphere of radius r is, हमें डायरेक्ट ही पता है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, एंड यू कैन यूज हियर। देखिए, ये पाई आर स्क्वायर हो नहीं सकता, ये सर्कल का एरिया होता है। 2 पाई आर स्क्वायर ये कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, और ये 3 पाई आर स्क्वायर ये होता है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। So C is the correct option. Which of the following cannot be the probability of an event? इनमें से कौन सी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? इसके लिए देखिए क्या रूल है, हमें पता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 1 and 0 इंक्लूडिंग 1 and 0। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 होती है। लेकिन यहाँ ये देखेंगे, ये मोर देन 1 है। ये देखिए, ये 0.04% और 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 4% को हम लिखेंगे 4 upon 100, तो ये 0.04, ये भी 0 और 1 के बीच में।
और ये भी 0 और 1 के बीच पे, लेकिन ये जो 4 है वो 1 से ग्रेटर है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है. सो देयरफॉर यू कैन से दैट डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सी हियर, यहाँ पे ये बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए. ये जो क्वेश्चन है ये है कैन नॉट. सो डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. The roots of quadratic equation 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0 are. कैसे हैं इसके रूट? what is the nature of roots? क्या कंडीशन होती है उसके लिए? देखिए, उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी होता है लास्ट टर्म या कांस्टेंट टर्म. बी की जगह पुट करिए -4√3 और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा. माइनस एज इट इज, 4 एज इट इज. ए की जगह पुट करिए 3 और सी की जगह पुट करिए 4. देखिए, -4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का स्क्वायर होता है 3, -4 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज 48. 16 इंटू 3 दैट इज 48 माइनस 48 दैट इज 0. जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट कैसे होते हैं? When discriminant is equal to 0, then roots are real roots are real and equal. Roots are real and equal. B is the correct option. The following distribution shows the marks distribution of 80 student, and this is marks below 10, below 20, below 30, below 40, below 50, below 60, means less than. तो देखिए, ये ऐसे केसेस में 0 to 10, और ये 10 to 20, और ये 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और ये 50 to 60. इस तरह से इनमें क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा. ऐसे केसेस में ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा होता है, फ्रिक्वेंसी नहीं होता, ये होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी. तो देखिए, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 2, 12, 28, 56, 76 और 80. लास्ट में जो सारे फ्रिक्वेंसीज का सम है वो 80 है. तो ये जो एन है उसका जो वैल्यू हो गया वो हो गया 80. सो इन प्लेस ऑफ एन वी कैन राइट 80. मीडियन क्लास के लिए हमें चाहिए n/2. तो n/2 कितना हुआ? 40/2, सॉरी 80/2, दैट इज n/2 80/2 दैट इज 40. कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे कि देखिए अप टू 28 ये क्लास आएगा, लेकिन 28 में 28 से ज्यादा और अप टू 56 तक ये क्लास आएगा. तो मीडियन क्लास हो गया दिस वन, और ये है 30 to 40. So what is answer? The median class is 30 to 40. So C is the correct option. A quadratic polynomial whose zeros are 2/5 and -1/5 is. ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा जिसके दो जीरोस आपको दे रखे हैं? देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला. दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस मीन्स इन दोनों को ऐड करिए. 2/5 एंड प्लस -1/5, इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज. 2/5 -1/5, क्योंकि इसका साइन माइनस है, दैट इज वाई एक्स
प्रोडक्ट के लिए 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -1/5। सिंप्लीफाई करिए, x² -2/5 -1/5, एलसीएम लेके ऐड करेंगे, दैट इज 1/5 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे -2/25। अब क्या करें कि ये कोई इसमें कोई हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम इज 25, देन इट इज 25x² माइनस 5x माइनस 2। 1/25 को सेपरेटली पुट करिए, दैट इज 25x² माइनस 5x माइनस 2। हमें पता है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है पॉलिनोमियल के लिए। अगर इसको आप फैक्टराइज करके इसको भी इससे ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, जीरो आ जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला? दैट इज k ax² प्लस bx प्लस c। तो k इज एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे हमने जो रियल नंबर है 1/25 लिया, तो इस नंबर को आप इग्नोर कर सकते हो। यू कैन इग्नोर 1/25। जो भी कोई नंबर है उसको आप पॉलिनोमियल के लिए इग्नोर कर सकते हो। सो इफ यू इग्नोर दिस, देन इट इज 25x² माइनस 5x माइनस 2। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, द सीक्वेंस। पहले हम रीजन से स्टार्ट करते, देखिए ऐसे क्वेश्चन में द a n-a n-1 ये कांस्टेंट है और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए और 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। और n कोई नेचुरल नंबर, बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कम से कम 2 टर्म्स होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए। और ये जो टर्म आपका है, मीन्स एनी टर्म, कोई भी टर्म और उससे प्रीवियस टर्म, वो कांस्टेंट होना चाहिए। बिल्कुल, दिस इज आर इज करेक्ट। सो मैं कहूंगा ये आर करेक्ट है। अब इस सेकंड को चेक करते हैं, देखिए ये क्या इनका कॉमन डिफरेंस, इसमें 2 से ज्यादा टर्म है, बिल्कुल ज्यादा टर्म है। और क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? बिल्कुल सेम है। क्यों? -1 0। द डिफरेंस ऑफ थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म इज ऑल्सो 0। द डिफरेंस ऑफ सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो 0, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। असर्शन भी करेक्ट है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम रीजन से। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, क्या ये सही है? इज इट करेक्ट? ऑलवेज सी। चेक करते हैं। √2 इरेशनल है और √3 इरेशनल है। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, √6 ये भी इरेशनल है। तो हमें देखा कि जब दो डिफरेंट इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है। तो क्या ये हमेशा याद आएगा? इज इट ऑलवेज ट्रू? फिर चेक करते हैं। एक हमने इरेशनल नंबर लिया 2 प्लस √2, और एक हमने लिया 2 माइनस √2। देखिए ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर, using a plus b into a minus b whole square. 2 square is 4 and √2 square is 2. So 4 minus 2 is 2. क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है। दिस इज अ रेशनल नंबर एंड दिस इज इरेशनल नंबर। तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज फॉल्स। अब हम चेक करते हैं असर्शन को। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे टू √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3। हाँ, ये तो इरेशनल है।
तो हमने देखा कि ये जो नंबर है, दिस वन, दिस इज फॉल्स, and this is true. So we can say C is the correct option. इसमें इसका रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक्स. कीप वॉचिंग. सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट. थैंक यू. ये बेसिक का सेक्शन ए था, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस थे, 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 2 असर्शन रीजन क्वेश्चंस. थैंक यू.